right? So we are to study today the steps of the plant breeding. तो plant breeding को हमने 5 स्टेप के अंदर कलेक्ट करा है, 5 steps. The first is collection of variability, second is evaluation of the evaluation and selection of the parents, then third is hybridization, cross hybridization, fourth is selection and testing, and the fifth one is releasing. Okay, testing and releasing. देखते हैं क्या क्या है. तो 5 स्टेप के अंदर करेंगे and these steps are very important. फर्स्ट थिंग अपन कर रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने करा दिया, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. वी गॉट वेरी बिग वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट स्पीशीज आर ग्रोन एंड फॉर ईच स्पीशीज देयर आर डिफरेंट वेराइटीज आर देयर. The variety of wheat which we were growing in our country some 30 years back before the green revolution, that the grain used to be very small, red color, and per hectare land we used to produce a very small quantity of food, and the plants were very much sensible plant, very much क्या कहते हैं affected by the small changes in the weather conditions and used to get infected and all. And that was the time of farmers used to struggle, then also they used to produce a very small quantity of production. At the same time, we were heard that time when I was small, we used to hear very commonly that America is producing so much of food that they don't have facilities to store and they used to throw them in the seas. Ocean में फेंक देते थे वो. How true it was, I don't know. कोई पागल ही होगा जैसे करेगा. उसका अल्कोहल बनाओ, गाड़ियाँ चलाओ, काय को पेट्रोल पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी आपको, तो थोड़ी समझ कर सकते हैं. बट आई डोंट नो व्हाट वाज द ट्रूथ ऑन दैट. बट कहने का मतलब ये था कि दे वर प्रोड्यूसिंग मच मोर देन दी व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज. पॉपुलेशन इज वेरी लेस इन यूएस एंड इन कंपेयर टू दैट दे got vast area under cultivation, and then also the farmers were using the newer technology, high yielding variety seed and farming equipments and all, and they used to produce so much of wheat and other productivity that there was no one to eat. ठीक है. एंड हु वरीज अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गरीबों के लिए बांट दो भैया, सोमालिया में चल जाओ, कर लो कुछ दान पर. खुद करते भी होंगे शायद, हम ये नहीं कह सकते. उन्हीं लोगों ने जो है मतलब आगे होकर के वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ और इन सब की स्थापना करी, तो दे वर गिविंग ए लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर वाज यूएस ओनली. हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर रहे थे, बट फेंकना क्यों. चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे द सेम स्पीशीज हैज गॉट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट. The kinds, the varieties, not the species. Species is same. Wheat is wheat, triticum. But the triticum which we were growing in India and the triticum which were grown in the other parts of the world had a variety of differences. Some were sturdy, some were resistant to the low water content, or some were resistant to the saline water, some were not infected by the insects or the fungi and other. There were a number of variations. So if I had to start that is high yielding variety seed production center, then what I had to do is my first step will be the collection of variability. I will have to send letters to all the different organization of world countries of agriculture department of the different countries and ask them कि आपके पास जितनी भी variety की wheat हैं भेज दीजिए sample. Maybe 10 gram, maybe half kg, maybe 1 kg जो भी. एंड आई पे नो प्रॉब्लम. आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है, क्या हो. तो मैंने मैक्सिको से कहा भाई वॉट एवर वेराइटीज ऑफ व्हीट इज ग्रोन इन योर कंट्री, सेंड वन पैक ऑफ दैट. आई आस्क कैनेडियंस, आई आस्क मलेशियंस, आई आस्क इंडोनेशियंस, आई आस्क जापानीज, आई आस्क चाइनीज, आई आस्क पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मालदीवियन, श्रीलंकन, इंडिया तो है ही. हाँ, दुनिया भर में जितने भी है. क्यों कर रहे हैं सारी मेहनत, क्यों कर रहे हैं. और सोचिए कितना एक्सपेंसिव होगा. एंड देन थिंक वेयर आई विल स्टोर देम, हाउ मच मनी आई हैव टू स्पेंड दैट और स्पेंड फॉर दैट. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप. व्हाई? एक ही कारण है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस जीन्स ऑफ आवर डिजायर. हम अपनी मर्जी का जीन नहीं बना सकते. अगर मैं सोचूं कि मेरा स्किन कलर या ह्यूमन का स्किन कलर ये ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा है, यार ब्लू कलर के होते तो कितना अच्छा लगता है.
by any mean we cannot make a gene which gives blue color appearance to the human being. वो तो शिव जी के ही था केवल म्यूटेंट वेराइटी, बाकी किसी में ऐसा कलर नहीं आया। अब वो भी नहीं रहे होंगे, वो मतलब अब जैसे नील गाय कोई नीली थोड़ी होती है, वो तो हम कह देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा हम लोग नाम देते हैं। श्याम तो मतलब कौन से कृष्ण जी बिल्कुल काले थे, जैसे नीग्रोज होते हैं, नीग्रोज हैं ब्लैक तो, ठीक है, बट वो थोड़े से डार्क थे तो उनको इस तरह से नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसा वो हमारा वो ये केवल हमारी समझ का फेरा है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। बट इफ सपोज आई वांट ब्लू कलर, दिस ब्लू कलर स्किन, मेरा स्किन, मेरा पूरा बॉडी इस कलर का हो जाए, तो ये जीन किसी भी, अगर दुनिया में किसी न किसी ह्यूमन बीइंग में अगर ब्लू कलर मिल रहा होगा, देन इट इज पॉसिबल। बट इफ नो ह्यूमन बीइंग हैज ब्लू कलर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर। कोशिश कर सकते हैं म्यूटेशन वगैरह से, एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, ये वो सब कुछ डाल करके, एंड हो सकता है कभी न्यू कोर्स ऑफ टाइम कहीं एक जगह बच जाए। बट desired character we cannot design in an organism. What we can do is, if there is a character in some individual, we can transfer the character into our desired plant by two different means, by hybridization or by genetic engineering. Now genetic engineering, since it was in the early step when the books were written, तो इसलिए उसके ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। We have a more description of hybridization only. So हमको क्या करना पड़ेगा, दुनिया भर में मिलने वाली all the different varieties of the wheat which are grown world over, we will ask them, and we can even ask them if you can write the characteristics, the phenotype of that plant, कि भाई वो हाइट कितनी अटेंड करता है, कितने महीने में मैच्योर होता है, व्हाट आर द प्रोडक्टिविटी, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, वेदर इट इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वेदर इट इज सस्पेक्टेबल टू सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन, और वेदर इट गेट सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस, ऑल द प्रोज एंड द कॉन्स। अगर उन्होंने दे दिए हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल हैव टू राइट। सो जितने सीड हम लेकर के आएंगे दुनिया भर से, वी विल ग्रो देम इन द डिफरेंट कंडीशन। एक न्यूट्रल पानी के अंदर ग्रो करेंगे, एसिडिक वाटर में, सेलाइन वाटर में, बेसिक वाटर में, काली सॉइल में, ब्राउन सॉइल में, दिस सॉइल में, दैट सॉइल में, एवरी टाइप, एंड किसी को गर्म जगहों पे, किसी को ठंडी जगहों पे, एंड वी विल सी दैट, एंड देन विल पुट ऑल द टाइप ऑफ पेस्ट, एंड विल सी व्हाट आर द आउटकम, व्हाट आर द रिजल्ट। तो ये है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। We should have all the possible variation of that particular character that is collectively forming the germ pool, sorry। तो ये जो वर्ड सबसे लास्ट में लिखा ना, germplasm collection, दुनिया भर के जितनी भी वीट हैं उनको सबको ले आएंगे, तो वीट के सारे करेक्टर हमारे पास हैं। Now only what we have to do is by hybridization bring those character into your desired plant if you want. If you don't want, just avoid them, don't use them as a parent plant. So I think it is clear to you why we have to have a collection of variability as a first step. एक चीज मैंने आपको बताया, that we cannot produce a character of our desire। हम नहीं बना सकते, हम नहीं कह सकते कि मूंग की दाल का पीला रंग अच्छा नहीं लग रहा है, लाल होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। For that you will have to see that is there anywhere मूंग की दाल which is red in color, और we cannot this thing have a particular character। भाई हम कोई नया कलर या कोई अलग टाइप का टेस्ट वेस्ट तब तक नहीं ला सकते जब तक वो चीज़ किसी न किसी स्पीशीज़ में, किसी न किसी वेराइटी में नहीं हो, ठीक है। तो ये है, देखिए क्या लिखता है, पढ़ते हैं हम। Genetic variability is the root of breeding program. In many crop, pre-existing genetic variability is available from the wild relatives of the crop। wild relative कौन है, जिसको हमने domesticate नहीं किया है। We are not growing, this is my field, in the field I will grow only what seed I want to grow। फील्ड के बाहर अगर कोई वीट उग रहा है या कोई दूसरा प्लांट उग रहा है which I have not grown, those all are wild, those they are not in the jungle, wilderness में नहीं हो,
but that I have not cultivated, I have not domesticated, those all plants are called wild plant. Wild plants को हम पानी नहीं दे रहे, हम खाद नहीं दे रहे, we are not putting any pesticide, we are not giving any weedicide and removing the weeds, we are not taking any care of that. In spite of that the plant is growing. That means sturdiness का character उसमें है, disease resistant का character उसमें है, low water ग्रोथ का करेक्टर उसके अंदर है, तो दे आर ऑल्सो हैविंग सम गुड करेक्टर। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, हमारी गली में बहुत सारे कुत्ते हैं, है ना, ये वो स्ट्रे डॉग्स हैं, दो स्ट्रे डॉग्स आर बेयरिंग और केपेबल ऑफ बेयरिंग द एक्सट्रीम ऑफ विंटर, एक्सट्रीम ऑफ समर एंड एक्सट्रीम ऑफ क्या कहते हैं रेन। दे आर इवन living with other dogs which have got other type of diseases, fungal infection and all, but they are not having that. That means they are resistant varieties. जो नहीं होती हैं, जिसको 4 दिन खाना नहीं मिला है वो मर जाएगा, लेकिन ये डॉग स्ट्रॉन्ग वेराइटीज हैं, दैट इज दे कैन इवन सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। दे आर नॉट गिविंग एक्वागार्ड वाटर, वो तो नाली का ही पानी पीते हैं, तो दे आर रेजिस्टेंट टू दैट। तो ये जो एनिमल्स हैं दे आर फार बेटर देन द डॉग्स विच वी गॉट इन आवर हाउस। हमारे पास 70,000 का कुत्ता होगा, हमारे पास 20,000 का कुत्ता होगा, हमारे पास वो ऐसे ऐसे नाक मुंह वाला कुत्ता होगा, हमारे पास बढ़िया से बाल वाला कुत्ता होगा, हमारे पास अच्छी हाइट वाला कुत्ता होगा, लेकिन वो सब जो हैं दे आर ऑफ नो यूज़। आप उसको 2 दिन के लिए बाहर निकाल दीजिए, दे विल डाई और दे विल फॉल सिक, बिकॉज दोज आर ग्रोन इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। आप जिस रूम में एसी चला के बैठे हो वहाँ पे अपने कुत्ते के लिए जगह बना दी है, तो कुत्ते जी भी एसी में बैठे हुए हैं, they will not be able to tolerate the extremities of the heat outside where which stray dogs are bearing। ठीक है, ये कुत्ते को हम जो है स्वेटर पहना देंगे थोड़ी सी सर्दी आएगी। गली के कुत्ते को कौन ने स्वेटर पहना रखा है? वो सर्दी में रात का टेम्परेचर जो -2 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, -1 भी हो जाता है, डरवाड़ा वगैरह में इस एरिया में तो हो ही जाता है, इतना 2 डिग्री तो हो ही जाता है, तो 2 डिग्री का टेम्परेचर भी वो टॉलरेट कर लिया है। वेयर इज द डॉग विच इज लिविंग इन आवर हाउस दैट विल बी टॉलरेटिंग ओनली द इनसाइड द हाउस वॉट एवर टेम्परेचर इज देयर। इन द एक्सट्रीम कंडीशन 17 डिग्री से कम थोड़ी होगा रूम का टेम्परेचर, उससे कम तो जाने नहीं देते हम। ठीक है, तो दैट इज द सेम वे द प्लांट्स विच आर देयर इज ग्रोइंग इन द वाइल्ड। तो वाइल्ड वेराइटीज का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके ढूंढ के लाओ उनको। ठीक है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीशीज एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज फॉलोड बाय देयर इवैल्यूएशन। हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर बैड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्वालिटीज एंड हार्मफुल कैरेक्टर्स। ठीक है, इवैल्यूएट फॉर देयर characteristic is prerequisite for the effective exploitation of natural gene available in these population। क्योंकि when you have to look for the disease resistant variety, you will have to look in these wild plants only, because उनको we are not giving any specific treatment yet they are surviving, that means they are disease resistant। ठीक है, अगर हम अपने घर में पलने वाले कुत्तों को देखेंगे तो they are very sensible, they have lost that capability of resistance for many of the things। एक बार उसका ब्रीड करा देंगे विद द लोकल वेराइटीज, दे करेक्टर्स में इंप्रूव। जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था ना, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, तो एक बार आउटब्रीड करा दें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। तो ये प्री रिक्वेस्टिक है फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल जीन्स अवेलेबल इन द पॉपुलेशन, द एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड दैट इज द सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स ऑफ द ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, जीन एक ही रहेगा, उसकी वेराइटीज रहेगी, जीन एक ही, आंख का रंग, वेराइटीज क्या है, ब्लैक आइज आर देयर, ब्राउन आइज आर देयर, ग्रीन आइज आर देयर, ग्रे आइज आर देयर, सम अदर आइज में ऑल्सो। दुनिया बहुत बड़ी है, हमें क्या मालूम। ठीक है, तो ये सब, तो आपको वो जितनी भी वेराइटीज़ हैं उनको सबको लाना है, उनको घर मतलब आपके एक अच्छा सा सीड क्या क्या क्रायोजेनिक स्टोरेज रहेगा हाउस, उसके अंदर हम इनको सबको रख देंगे, हर बॉटल के ऊपर लिख देंगे कि दीज आर द गुड करेक्टर एंड दीज आर द बैड करेक्टर। अगर अच्छे ही होते तो फिर वहाँ पे क्यों रहता, फिर खेती कर रहे होते हैं।
दूसरा क्या, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. नाउ यू टेक अ राउंड इन द germplasm collection and go search that which plant has got, which seed has got maximum good characters. लिस्ट अपन ने कल बनाया था, क्या क्या गुड करेक्टर हमको चाहिए. हाई यील्ड चाहिए, वी वांट गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू, वी रिक्वायर अर्ली मैच्योरिटी, वी वांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बायोटिक कंडीशन, वी वांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अबायोटिक कंडीशन, वी वांट लो वाटर क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी, वी वांट द वेरियस एग्रोनॉमिक वैल्यूज, वी वांट जो भी आपको करेक्टर चाहिए. अगर वो दाल है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ ऑयल सीड तो वी नीड मोर ऑयल इन दैट, इफ़ इट इज़ पीनट तो हमको ऐसा चाहिए जिसके अंदर तेल भी ज़्यादा हो और प्रोटीन भी ज़्यादा हो, सो दैट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल द रिमेनिंग प्रोटीन्स कैन बी यूज फॉर एनिमल फीड. ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख लेंगे और फिर हम देखने लगेंगे एक एक प्लांट्स के अंदर किसमें सबसे ज़्यादा करेक्टर है और कौन सा नहीं है. तो सपोज यू मे फाइंड अ प्लांट in which the productivity is good, nutritive value is good, disease resistance is also there, but it is susceptible to the diseases, infection. कौन से वाले फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उनको इंसेक्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, हो सकता है द मैच्योरिटी टाइम इज मोर. So you select a plant in which maximum of the desirable characters are there and select another seed in which those characters which are absent here are present there along with the other characters. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी, द क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंट कंडीशन, रेजिस्टेंस टू द बायोटिक कंडीशन, द मैच्योरिटी टाइम, एग्रोनॉमिक वैल्यूज. Suppose these are all special and the plant A it has got this, but it is not resistant to the temperature variation. और इट इज़ नॉट क्या कहते हैं रेजिस्टेंट टू द सेलाइन वाटर. सेलाइन वाटर दोगे प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी. बायोटिकली वो अच्छा है लेकिन मैच्योरिटी टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा लगता है. ठीक है, एग्रोनॉमिक करेक्टर्स अच्छे हैं. प्लान बी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, क्वालिटी इज नॉट सो गुड, बट ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी है. वाइल्ड प्लांट है भाई, जंगली प्लांट है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई उसकी देखभाल करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी ठीक ठाक है, लेकिन क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड. उस चपाती बनाओगे आप तो उसको फोल्ड करोगे टिफिन में तो 4 टुकड़े हो जाते हैं. जब आप उसको चपाती को खोलेंगे तो ईच पीस आर सेपरेटेड, तो ऐसे कौन खाएगा. तो अब हमने क्या करना है, ये वाला प्लान और ये वाला प्लान, इट हैज गॉट मैक्सिमम 30 मिले, तो इट हैज गॉट 4 गुड क्वालिटी, इट हैज गॉट 6 गुड क्वालिटी, इट हैज 3 लिमिटेशन, इट हैज गॉट 1 लिमिटेशन. इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करें. तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया पेरेंट्स. ठीक है, when we select the parent we have to make it sure that those characters which are here or not there, which is here, which is not here is there. अब हाइब्रिडाइज कराने से हमारी चेष्टा क्या है, what we want, what our aim is. Our aim is that all the good characters of this and all the good characters of this come to the offspring, which often doesn't happen. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बढ़िया राइटर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यूएस के थे, यूके के थे, जो भी है, क्या बोलते थे ऑरेटर, है ना, बहुत अच्छे. और वो बोलने लगे तो लोग बार बस एक टक उनको सुनते रहे. वन यंग लेडी, ब्यूटीफुल, extremely beautiful lady. At the end of the program, she approaches to George Bernard Shaw and says, Mr. Bernard, how nice it will be if we get married. Our children will have your intelligence and my beauty. अब इंटेलिजेंस क्या होती है आपको मालूम पड़ेगा. बर्नार्ड शॉ ने पलटते ही बोला, लेडी, हाउ गुड योर आइडिया इज, बट आई अफ्रेड सपोज इट गो इन द अदर वे. ये तो भोंडी है, तेरे को ये समझ नहीं है, और मेरे में कोई रंग रूप नहीं है, और हमारे बच्चे जो है उसमें तेरा भोंडापन आ जाए और मेरा बदसूरती आ जाए, तो उसको कौन संसार में कोई उसकी एक सेंटेंस में सुनने आएगा. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द गुड कैरेक्टर्स विल कम द ऑफस्प्रिंग. हो सकते हैं कि ये जो
ये जो गुड करेक्टर हैं वो सारे रहे हैं, सबके बैड करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ यू विल हैव hundreds and hundreds of seeds. You will have to grow them in all the seeds, and you have to take test. एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करके देखेंगे, हम उस टाइप के इन्फेक्शन भेज के देखेंगे, दोज टाइप ऑफ फंगल स्पोर्ट्स विल पुट whatever type of things are there, will take their all test. Most of them will fail. Some may have. Out of this, how many bad characters? It had only one bad character, it had 3 bad characters. ठीक है, अब आपने क्रॉस करा, मालूम चला ये वाला तो इम्प्रूव हो गया, क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई, ये भी इम्प्रूव हो गया, लेकिन मैच्योरिटी टाइम अभी भी जाता है। Now that plant will be again crossed with that another plant, another parent which you have selected, which has a less maturity period plus most of the good characters. So this will go on and on and on and on for several generations. ये तो hit and trial method है. This is an hit and trial method. जब आप देखते हो ना कि कोई भी किसी की शादी की बात चलती है तो लोग वहाँ जाते हैं, तो अक्सर लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले जाते हैं, लड़के के घर वाले जो है लड़की के घरों में गए एंड वो पूछते हैं कि साहब आपकी बेटी अच्छा क्या 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 जाता है, कितना पढ़ी है, वो डांस आता है उसको, अच्छा स्पोर्ट्स वगैरह में, अच्छा और म्यूजिक प्ले करती है, एंड दे विल टेक द होल इंटरव्यू एज इफ यू आर गोइंग टू आस्क हर टू डांस ऑन द स्टेज एवरी टाइम। बट क्यों ले रहे हैं? सो दैट वी व्हाट वी थिंक दैट ऑल दीज करेक्टर प्लस सम ऑफ द गुड करेक्टर, उसके लड़के में भी होंगे, वो अच्छे गुड करेक्टर मिल करके उनके बच्चे में चल जाएँ तो नाउ माई चिल्ड्रन, चलिए सम ऑफ माई गुड करेक्टर्स आर देयर इन माई डॉटर, जो कलाकारी के करेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड शी गॉट सम ऑफ द करेक्टर ऑफ हर मदर, द डांस एंड ऑल, ठीक है, एंड कुछ करेक्टर हमारे मेरी मम्मी के भी हैं, वो लेफ्टी है, माई मदर ऑल्सो यूज टू बी लेफ्टी, तो कुछ करेक्टर कहाँ के कुछ करेक्टर ऐसे आ जाते हैं। बट हम ये मान के चलते हैं कि इफ द पेरेंट्स आर गुड, द चिल्ड्रन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द करेक्टर्स, गुड करेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग विल इंक्रीज। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड चलता रहेगा, एंड दैट इज व्हाई द ऑफन द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दिस हैज़ टू बी कंडक्टेड सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेप था ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, जो हमने कर दिया है ना, अभी हमने सिलेक्शन करके हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। अब क्या है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकम्बिनेंट। वो जो प्लांट बने उनको आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और आप उसको टेस्ट करेंगे। यू विल टेस्ट देम इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रोनॉमिक कंडीशन, you will test them in the different type of soil condition, you will test them for the different type of pest and all. तो ये सिलेक्शन चलता रहेगा उनका, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकम्बिनेंट। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टिंग एंड अमंग द प्रोगेनी ऑफ द हाइब्रिड दोज प्लांट्स विच आर डिजायर करेक्टर कॉम्बिनेशन, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग। अगर आपने सिलेक्शन को अवॉइड कर दिया तो आप छोड़ दीजिए, वो आपका प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस स्टेप यील्ड्स द प्लांट दैट आर सुपीरियर टू द बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोगेनी मे बी बिकम अवेलेबल, ठीक है, एंड दीज आर देन सेल्फ पॉलिनेटेड। अब मान लीजिए एक ऐसा प्लांट आ गया विच आर गॉट ऑल द डिजायरेबल करेक्टर्स, एक ही प्लांट आया, 1000 सीड आपने प्रोड्यूस करें, लेकिन वन प्लांट यू गॉट विच आर गॉट ऑल द डिजायरेबल, 999 failed because of the 1, 2 or more characters which were not so good. अब एक प्लांट का क्या करेंगे? अब उसको होमोजाइगोसिटी लाना है, कैसे करेंगे होमोजाइगोसिटी? सेल्फ क्रॉसिंग, अगेन सेल्फ क्रॉसिंग, एंड फिर उनके, तो ये आप करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड इनलाइन ब्रीडिंग। इनलाइन ब्रीडिंग से क्या होगा? होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। दिस विल बी डन फॉर 2 जनरेशन, 2-3 जनरेशन, ठीक है। तब और उस टाइम में उसका टेस्ट वेस्ट भी हो जाएगा। तब जब 5th स्टेप है, देखिए क्या लिखा है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वेरिएंट। अब आपके पास काफ़ी सारे सीड्स आ गए, होमोजाइगस सीड्स। यू थिंक नाउ दैट गॉट ऑल द गुड करेक्टर्स। लेट अस सी, आगे देखते हैं क्या। द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर कल्टिवेटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। अब उनको टेस्ट करेंगे। द इवोल्यूशन इज डन ऑन द ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। पहले क्या है, एवरी
this high yielding variety producing seed producing जो institutes होते हैं, they got their own fields in which the restricted conditions are there. They got field with the red soil, they got field with the black soil, they got the clays and they got sandy and they got all type of soil conditions. They will grow there. ठीक है, दे विल गिव इनफ ऑफ वाटर, जितने पानी देना है वो सब कुछ. तो इसको कहते हैं मतलब इन द कंट्रोल कंडीशंस. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. द इवोल्यूशन इज डन ऑन द ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्म अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस. आइडियल कंडीशन, दैट इज कंट्रोल कंडीशन. ठीक है, बट these ideal conditions are not found in all over the country में. हर जगह फील्ड पे थोड़ी you may have a very good soil and very good irrigation facility available in Punjab and Haryana, in some part of Rajasthan like where we are living, Kota, we got plenty of irrigation facility, canal जा रही है यहाँ से, खूब पानी है. But that may not be same in Jodhpur, जैसलमेर, बाड़मेर, क्या कहते हैं, जयपुर and all. There the water scarcity is there. So you have to grow a crop which has to give good result in all the type of conditions. तो ये कंट्रोल में हम पहले इसको टेस्ट कर लेंगे. If they passes there, the evolution in the research field is followed by testing the material in the farmer's field, at least in 3 growing season for several location in the countries. अब हरियाणा में भी बोएंगे, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, विदर्भ में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में. Representing all the agroclimatic zones, because the agroclimatic zone which is there in the Haryana and Punjab, and those which are found in the Vidarbha where the maximum suicidal attempts are done by the farmers because their productivity is less, the Andhra Pradesh and the Orissa and the West Bengal, they are different type of agroclimatic conditions. You have to grow them there also and see that whether they are getting the same type of result, more or less 10% fluctuation, not more than that. ठीक है, the material is evaluated for the in comparison with the best available local crop के comparison में इसका production कितना आ रहा है. अगर वो अच्छा आ रहा है then recommendation is given कि हाँ ठीक है साहब, अब आप बेच सकते हो. तो इंडिया mainly is agriculture country and agriculture account for more than 33% of India's GDP and employ nearly 62% of the population. ये more or less same ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर. आफ्टर इंडिया, अच्छा मैं जब ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि 33% of the India GDP and 62% of population, you don't think the 62% people are all farmers. We are not talking about only farmers. That is all those who are involved in the agriculture business. They may be what you call dairy farmers, they may be poultry farmers, they may be beekeepers, they may be seed sellers, they may be fertilizer sellers, they may be storage house managers, or those who may be in the processing industries. वो किसी न किसी तरीके से irrigation agriculture से related है. उनको सबने एग्रीकल्चर में कहा. ये डोंट थिंक कि वो सबके सब 2 बैल लेकर के और हल लेकर के निकल जाएंगे खेती करने के लिए या ट्रैक्टर चला रहे हो. नॉट ऑल ऑफ देम आर हैविंग दिस. ठीक है, ओवर हो गया.